Hello and welcome to I'm the Best Mom. I trust you all are keeping well and staying safe. I'm the Best Mom. Here we are committed to give you the best of experience from the doctor fraternity, sometimes experts coming from the health and wellness to the psychologist and many more. Now, how a doctor thinks and how you think, and we always carry a butterfly effect with us. Every life is precious and we love to address each one of them who are with I'm the Best Mom and Cover Page Cover Story. Today, we are going to have an interesting topic. And for that, it's very important to understand seizure. Seizures are results of abnormality in functioning of brain. And seizure occurs when there is an chemical changes in the nerve cells. Generally, seizures involve imbalance of both sides of the brain. There usually will be loss of consciousness through child appear awake. In the special edition of Cover Page Cover Story today, we are going to discuss various facts related to seizures, mimics, and age group approach treatment. To do this event, we have Dr. Anuj Rastogi, sir, and he will be taking us with his questions and various discussion we will be having. But today's guest of honor is Dr. Juhi Gupta. Ma'am, Dr. Juhi Gupta, welcome to I'm the Best Mom. Dr. Juhi Gupta is Assistant Professor of Pediatric Neurology at Department of Pediatrics at Jekyll Hospital, Jaipur, Rajasthan. She has done her MD Pediatrics from Lady Hardinge Medical College, New Delhi, and thereafter DM in Pediatric Neurology from the Apex Institute of the country, All India Institute of Medical Science. She was conferred the Dr. P. N. Taneja Award by Indian Academy of Pediatrics in 2020 for her paper in transcranial magnetic stimulations, research, and a lot of publications as well. With this, I would request Dr. Anuj Rastogi, sir, to take on the session of today's Cover Page Cover Story with Dr. Juhi Gupta. Thank you, Deepmanji. I enjoyed taking care of children and I found it endlessly rewarding. And I feel unbelievably lucky to get connect with renowned people of pediatric field. And today I welcome Dr. Juhi Gupta, who is pediatric neurologist, and we will discuss the common problem of children. Like 4 to 5% of children in their lifetime, they have seizure or seizure-like activity. So it is not uncommon. 4 to 5% means 5 out of 100. So sometimes they have seizures because of fever, or sometimes they have seizure-like activity where there's a lot of confusion whether they are having seizures or they are not having seizure. Breath holding spell is one of them. It is very, very common in children. After 9 months of age or 7 months of age, they become blue or they become pale and they throw seizure. So there is a lot of confusion in finding out, and sometimes few patients, they were giving antiepileptic treatment, anti-seizure medicine, which are not required. And with the evolution of pediatric subspecialty and pediatric super specialty, we have now better knowledge. Like one very important tool, EEG, which helps us in diagnosing the seizure, a type of seizure. So that also has a different connotation with pediatric neurologists and other doctors. So with the evolution of pediatric neurology, although there are very few pediatric neurologists in the country, but now they have started increasing in number, and the things what we were taking as seizure are not more considered as seizure. There are many conditions in children where they were earlier given anti-seizure treatment. Now, with the evolution of knowledge and evolution of pediatric super specialists like pediatric neurologists, things have changed. So I welcome Dr. Juhi Gupta. So ma'am, can you define what is epilepsy for us? Thank you very much, sir. And at the outset, I would thank the organizers for giving me this opportunity. And so I would start off without taking much time. So the question to me is, can we define epilepsy? So epilepsy is, if we see just the medical terminology, so it is the
enduring predisposition of the neurons to have a neuronal abnormal activity. But the international authority to define epilepsy is ILA, International League Against Epilepsy, and that has defined epilepsy under 3 points. So the first point is presence of 2 or more seizures 24 hours apart. That is one, and this is something that we have always been aware of. This is something which is being classically taught, and this is what most of us are very well aware of. The second point and the third point are something that we should also be knowing. The second point is presence of a single seizure, but the tendency or the chances of recurrence are more than 60%. So 60%, why they have taken 60%? So this is an approximate chance of recurrence after having 2 seizures. So even if your child has a single seizure, but because of some abnormality on EEG, on examination, on history, or on the neuroimaging or the MRI, if the chances of recurrence are more than 60%, then at that point itself, you will label it epilepsy and go ahead with treating with anti-seizure medications. The third point is in the definition of epilepsy by ILAE, that presence or identification of an epilepsy syndrome. So let me simplify these 2 points for you. So the second point I said ki the tendency of having a second seizure more than 60%. So for example, a child is a case of tuberous sclerosis. You see the child first time in your practice, and the child comes to you and you examine the child, and there are all the neurocutaneous markers. The MRI is also suggestive of tuberous sclerosis. And the child has had only 1 episode of seizure. Then at that time, the tendency to throw a second seizure is pretty high. So then you will not wait for a second seizure to label it epilepsy. Rather, on the first episode itself, you would like to start the medications. The third point, the identification of an epilepsy syndrome. So for example, the child has history of spasms and you are identifying the syndrome as West syndrome, then again, you will label it as epilepsy or epilepsy syndrome and go ahead and treat the child. So this is how we see epilepsy in today's era. डॉक्टर जूही ने बताया कि अगर सिर्फ एक सीजर आता है जैसा कि और जिसमें कोई कारण भी नहीं पता चलता है तो उस सीजर को हम इग्नोर कर सकते हैं बच्चों में, और अगर सेकंड सीजर आ जाता है वैसा तो उसके बाद 60% चांस होते हैं उसको एपिलेप्सी डेवलप करने के या एंटी सीजर मेडिसिन देने के। तो ये एक डॉक्टर का जुरिसडिक्शन होता है कि उसको दौरे की दवाई दी जाए या ना दी जाए। बट मोस्टली अगर हम अनप्लान तरीके से चलते हैं तो जैसे हम पे बहुत सारी बार बच्चे आते हैं, रोजाना मैं अपने क्लिनिक में बच्चे देखता हूँ 4 साल से दौरे की दवाई खाए जा रहे हैं या 5 साल से खाए जा रहे हैं, बिकॉज दे आर नॉट अवेयर कितना लेना है, कब तक लेना है, या लेना भी था या नहीं लेना था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डॉक्टर जी ये बताइए कि जो डायग्नोसिस के लिए ईईजी करा जाता है, what is the difference between EEG done by a pediatric neurologist or pediatric neurology clinic and other clinics? Okay, thank you for the question, sir. तो आपने पूछा कि EEG में क्या अंतर होता है अगर EEG बड़ों के न्यूरो के डॉक्टर, दैट इज अडल्ट न्यूरोलॉजिस्ट और न्यूरोलॉजिस्ट से कराया जाए बजाय के पीडियाट्रिक यानी बच्चों के न्यूरो के डॉक्टर से कराया जाए। सर इसमें मैं पहली बात सबसे जो बात मैं कहना चाहूँगी वो ये है कि EEG somehow is a overused investigation. EEG कभी भी सीजर है या नहीं ये बताने के लिए कायदे में यूज नहीं होनी चाहिए। एपिलेप्सी, मिर्गी, सीजर्स, दौरे ये एक्चुअली एक क्लिनिकल डायग्नोसिस होता है, और आजकल जब सबके पास स्मार्टफोन्स हैं हम वीडियो देख सकते हैं उस इवेंट का, तो हिस्ट्री, एग्जामिनेशन एंड होम बेस्ड वीडियोस, इनके बेसिस पर हमें लगभग पता चल जाता है कि हम सीजर से डील कर रहे हैं या नहीं। ईईजी बस हमें वो चीज कंफर्म करने में हेल्प करता है, और दूसरा कुछ केसेस में जब हमें देखना होता है कि ब्रेन के किस हिस्से से दौरे आ रहे हैं, या जैसे वेस्ट सिंड्रोम मैंने बताया उसमें एक पर्टिकुलर ईईजी फाइंडिंग होती है, तो बस उतनी ही मदद हमें ईईजी करता है। दूसरा आपने पूछा कि क्या अंतर होता है, तो कोई भी मशीन, जैसा कि हम जानते हैं कि मशीनों की कुछ सेटिंग्स होती हैं जिन पे उस ग्राफ को रिकॉर्ड किया जाता है, तो वो जो सेटिंग्स हैं वो बच्चों में और बड़ों में कुछ अंतर रखती हैं।
और उन सेटिंग्स को अगर बच्चों के हिसाब से किया जाए, मोन्टाजेस एक चीज होती है जिसमें डिपेंड करता है कि किस तरीके से हम रिकॉर्डिंग को ले रहे हैं, तो वो चीजें जो बच्चों के न्यूरो के डॉक्टर रीड करते हैं या देखते हैं, अक्वायर करते हैं रिकॉर्ड, वो बच्चों के लिए सही होता है। और बहुत बार रिकॉर्ड लेने के उपरांत जो रिपोर्टिंग है वो भी मैटर करती है कि बच्चों के न्यूरो के डॉक्टर अगर करें तो वो ज्यादा सही ढंग से की जाती है। ये आपने बताया कि अगर जो बड़ों वाले मोन्टाज हैं, जो तार जिस तरह से बड़ों के लगाए जाते हैं, अगर उसी प्रकार से बच्चों के लगा दिए जाए तो ओवर रीडिंग हो जाएगी। मतलब हो सकता है कि उसको दौरे ना हो और वो दौरे की तरह रीड करा जाए, क्योंकि ऐसा मैंने कई बार अपनी प्रैक्टिस में भी देखा है। और जब वो हम एक ऐसे न्यूरोफिजियोलॉजिस्ट से या न्यूरोफिजिशियन से कराते हैं जो बच्चों के बारे में डिफरेंट जानकारी रखते हैं, और उनके मोन्टाज, उनके जो लीड्स हैं वो उस तरह से लगाई जाती हैं जो बच्चों की लगनी चाहिए, तो एक रियल पिक्चर सामने आती है। सो वेरी गुड, आपने बहुत ही अच्छा बताया डॉक्टर जूही। एंड दूसरी बात आप मुझे बताइए, कितने किस्म के सीजर बच्चों में देखे जाते हैं जनरली? ओके सर अगर हम अगर जितना कि मैं जानती हूँ, हमारे आज के सेशंस के जो श्रोता हैं वो पेरेंट्स हैं, मदर्स हैं काफ़ी, और केयर गिवर्स हैं। तो मैं मेडिकल लैंग्वेज बहुत ज़्यादा ना यूज़ करते हुए आसान तरीके से बताना चाहूँगी कि सीजर्स हम मोटा मोटा कैसे देखते हैं। तो सीजर्स मोटे मोटे हम 3 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट होते हैं जनरलाइज्ड, मतलब पूरे शरीर में आने वाले दौरे। जो एक आम आदमी जब भी दौरा शब्द सुनता है, दौरा, चमकी, मिर्गी, तान, इस तरीके के शब्द हमारे देश में कॉमनली यूज किए जाते हैं। तो उसमें हमारे मन में पिक्चर आती है कि आंखें ऊपर करके और बच्चा ऐसे ऐसे हिल रहा है। तो ये एक कॉमन पिक्चर है एक जनरलाइज दौरे की, यानी पूरे शरीर में पड़ने वाले दौरे की। सेकेंड कैटेगरी होती है सर फोकल सीजर्स, मतलब शरीर के एक हिस्से में पड़ने वाले दौरे, यानी एक हाथ एक पैर हिलना, या सिर्फ एक हाथ हिलना, या सिर्फ एक पैर हिलना, या सिर्फ मुंह एक तरफ हिलना। तीसरी कैटेगरी होती है अननोन, मतलब जिसमें पेरेंट्स को क्लियरली नहीं पता है या क्लियरली याद नहीं है या कोई वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं है, जिसमें वो बहुत श्योर नहीं है कि किस तरीके से दौरा पड़ा। इसमें एक क्रूशियल बात जो कि ट्रीटमेंट डिसीजन लेने में हेल्प करती है वो ये है कि जब भी दौरे को क्लासिफाई किया जाता है, यानी अंतर किया जाता है कि कौन से तरीके का दौरा है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है सीजर का ऑनसेट, यानी सीजर की शुरुआत। तो अगर पेरेंट हमें बताता है कि जब हम पहुंचे या जब हमारी नींद खुली तब पूरा बच्चा हिल रहा था, तो उस पे हम क्लासिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि जब दौरा शुरू हुआ तब उस समय वहां कोई फर्स्ट हैंड विटनेस नहीं। तो ऐसे में आप ईजी की मदद लेंगे कि ये पार्शियल सीजर है या जनरलाइज सीजर है, मतलब ये आधा हिस्से का सीजर है या जनरलाइज सीजर है? क्योंकि जनरलाइज सीजर के लिए आप दूसरी दवाइयाँ यूज करना चाहते हैं और एक फोकल सीजर के लिए दूसरी दवाइयाँ यूज करना चाहते हैं। क्या इसके लिए और इसके अलावा कोई और टेस्ट भी पॉसिबल है? क्या सीटी स्कैन कराना चाहिए, एमआरआई कराना चाहिए, या इन किन केसेस के अंदर ये टेस्ट कराने चाहिए? ओके सर, जैसा कि हमने देखा कि 2-3 तरीके के सीजर्स आते हैं बच्चों में, तो पहले यूजुअल थिंकिंग ये थी कि फर्स्ट सीजर को बहुत इन्वेस्टिगेट नहीं किया जाता था, वी यूज्ड टू वेट फॉर अ सेकंड सीजर टू कम, बट नाउ द लेटेस्ट रिकमेंडेशंस आर दैट इवन इफ इन द फर्स्ट एपिसोड ऑफ सीजर बच्चे को पहला ही दौरा पड़ा है, लेकिन हमें कुछ पॉइंटर्स मिल रहे हैं, जैसे कि वो सीजर शरीर के एक हिस्से में आया है, बच्चा मानसिक रूप से या विकास जो है बच्चे का वो अप टू डेट, मतलब पूरी तरीके से नहीं है। तो अगर ऐसे कुछ पॉइंटर्स हमें मिल रहे हैं तो हम पहले ही एपिसोड में भी एमआरआई करा सकते हैं। एमआरआई वर्सेस सीटी अगर हम इलेक्टिवली करा रहे हैं, मतलब इमरजेंसी सिचुएशन में नहीं है, बच्चा हमारे क्लिनिक में आ रहा है, हमारे पास समय है, तो एमआरआई ब्रेन विद एपिलेप्सी प्रोटोकॉल 3 टेस्ला यही इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है किसी भी प्रकार की सीजर या एपिलेप्सी के लिए। तो हमें एमआरआई कराते वक्त अच्छी क्वालिटी का एमआरआई यानी 3 टेस्ला एमआरआई, और उसमें एक चीज होती है एपिलेप्सी प्रोटोकॉल, उस तरीके से ही एमआरआई कराना चाहिए। तो इन दोनों में सेफ कौन सा है बच्चों के लिए, सीटी स्कैन या एमआरआई?
सर सीटी स्कैन में रेडिएशंस होती हैं और एमआरआई रेडिएशन फ्री होता है, एमआरआई सेफ होता है। और बहुत सारी बार बीमारी सीटी स्कैन के अंदर मिस भी हो सकती है जो एमआरआई पिक करता है लाइफ में। अब ऐसी क्या कंडीशंस हैं जैसे जहाँ पे हमें लगता है बच्चे को दौरे हो सकते हैं? जैसे मैं फर्स्ट मंथ ऑफ लाइफ से शुरू करता हूँ, तो बच्चे हमने अक्सर देखा है हिलते रहते हैं और पेरेंट्स को लगता है शायद ये कहीं दौरे तो नहीं है बच्चे को। तो उसमें कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं बच्चे को ये दौरा है या ये किसी और वजह से हिला? यस सर। तो सर इसमें जो एक न्यूबॉर्न होता है फर्स्ट मंथ ऑफ लाइफ में, कई ऐसी कंडीशंस हैं जैसे जिटरीनेस, बिनाइन न्यूनेटल स्लीप मायोक्लोनस, कई ऐसी कंडीशंस हैं जो कि दौरा नहीं होती। तो ऐसे में अगर ऐसा कोई भी मूवमेंट है तो पेरेंट्स को अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। और कुछ पॉइंट्स होते हैं जिनसे हम अंतर कर सकते हैं, जैसे अगर आपका बच्चा हिल रहा है, उसके हाथ हिल रहे हैं, और अगर आप हाथ को पकड़ लें और हिलना रुक जाए तो वो दौरे की तरफ पॉइंट नहीं करता है। मतलब अगर दौरा होगा तो आपके पकड़ने या कुछ भी करने से वो नहीं रुकेगा। तो अगर आप पकड़ रहे हैं और वो चीज़ रुक जा रही है तो ये इस तरफ पॉइंट करता है कि शायद हम दौरे से डील नहीं कर रहे हैं। बट फिर भी इतने छोटे बच्चों में खुद डिसीजन लेने की बजाय डॉक्टर को दिखाना चाहिए। राइट। और कुछ बच्चे दूध पीते हुए अपनी गर्दन को पीछे ले जाते हैं, जो हमारी भाषा में सैंडिफर सिंड्रोम कहते हैं। तो वो भी पेरेंट्स को रैचिंग जो है कई बार दौरा लगती है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए जो अगर बच्चा गर्दन बार बार पीछे ले जा रहा है दूध पीते हुए या दूध पीने की थोड़ी देर बाद, तो क्या उसमें ईजी कराना चाहिए या कैसे उसको अप्रोच करना चाहिए? तो सर ने एक बहुत ही अच्छा पॉइंट, मतलब ही पॉइंटेड आउट अ वेरी वैलिड थिंग कि कई बच्चे इस तरीके से गर्दन को पीछे कर रहे होते हैं, जो कि अगर हम साधारण शब्दों में बोलें तो एक रिफ्लक्स की प्रॉब्लम होती है। मतलब आप समझिए कि जो हम बड़ों में एसिडिटी रिफ्लक्स वाली बात बोलते हैं वो कुछ बच्चों में भी प्रेजेंट होता है। ऐसे केसेस में अगर आपके बच्चे को ऐसी कोई समस्या हो रही है तो घबराएं नहीं, आप उसका एक होम बेस्ड वीडियो बना सकते हैं। वीडियो बनाते वक्त आप उस समय जब बच्चा ऐसा कर रहा है तब उसकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं, बच्चे को स्टिमुलेट यानी बच्चे से बात कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, और वो होम बेस्ड वीडियो अपने डॉक्टर को दिखा सकते हैं। जो ये चीज़ होती है सैंडाइफर सिंड्रोम जो सर ने कहा, ये क्लिनिकल डायग्नोसिस होता है। तो अगर आपके डॉक्टर आपसे हिस्ट्री ले लें और वीडियो आप दिखा दें और उनका डायग्नोसिस यही है तो फिर ईजी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। किसी केस में अगर डाउट है तो ईजी की मदद ली जा सकती है। ऐसे में हम ये भी देखते हैं कि बच्चे का वजन कितना बड़ा है, और क्योंकि जो पहला साल है वो ग्रोथ ओरिएंटेड है, उसके अंदर खासकर पहले 3 महीने के अंदर जो बच्चों की ग्रोथ है वो बड़ी प्रिडिक्टेड ग्रोथ है, जिसमें अगर आपका न्यूट्रिशन सही चल रहा है तो डॉक्टर प्रिडिक्ट कर सकता है कि कितने समय में कितना उसका वजन, कितना उसका सिर का नाप, कितना उसकी लंबाई बढ़नी चाहिए। तो उससे भी हम बहुत कुछ गैस कर पाते हैं कि बच्चे की जो प्रॉब्लम है वो उसमें रिफ्लक्स वाली प्रॉब्लम कितनी है या कोई और प्रॉब्लम कितनी है। डॉक्टर जूही, जब बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं 6 महीने 7 महीने के, तो अक्सर ये देखा गया है हमारे देश में कि वो सांस रोकने लगते हैं और बहुत सारे बच्चे नीले पड़ जाते हैं, उनको दौरा भी आ जाता है। तो इसको ब्रेथ होल्डिंग स्पेल कहते हैं हम, और बच्चों के पेरेंट्स इस बात को लेके बहुत डर जाते हैं क्योंकि उस समय ऐसा लगता है जैसे बच्चा गया हाथ से। ऐसे में कैसे हमारा जजमेंट होना चाहिए और क्या करना चाहिए? सर ये आपने बहुत अच्छा चीज़ पूछी, क्योंकि काफ़ी पेरेंट्स इस बीमारी के आते हैं और भले ही ये चीज़ दौरा नहीं होती लेकिन पेरेंट के लिए बहुत डरावनी चीज़ होती है और पेरेंट्स के लिए बहुत चिंता का विषय होती है। तो जैसा कि सर ने कहा कि ब्रेथ होल्डिंग स्पेल, तो पहले तो मैं इस शब्द के बारे में बात करना चाहूँगी। ये एक मिसनोमर है, यानी ब्रेथ होल्ड नहीं करता है बच्चा। बच्चा रोता है और सांस जब निकाल देता है, सांस हम लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, तो सांस छोड़ने के बाद वो अगली सांस ले नहीं पाता। तो ये एक मिसनोमर है। एक्चुअली बच्चा रोते रोते कभी कभी हम कहते हैं सांस भूल जाता है,
तो वही बात है, सांस ले नहीं पाता। कोई कोई बच्चा नीला पड़ जाता है, कोई कोई बच्चा पीला सा पड़ जाता है। तो ऐसे में कुछ पॉइंट्स मैं पेरेंट्स को बताना चाहूंगी। तो अगर आपने इस चीज के लिए डॉक्टर को दिखा लिया है और डायग्नोसिस ब्रेथ होल्डिंग स्पेल्स ही है, तो फर्स्ट पॉइंट, आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं। बिल्कुल आप ये समझें कि ये किसी भी प्रकार का दौरा नहीं है, मिर्गी नहीं है, और ना ही इन बच्चों को बड़े होके मिर्गी, दौरा या विकास में कोई समस्या, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ये चीज समय के साथ चली जाती है। 50% बच्चों को 3-4 साल तक ये समस्या चली जाती है और ऑलमोस्ट 100% बच्चों को 6-7 साल तक ये समस्या चली जाती है। ये समस्या यूजुअली, जैसा सर ने बताया, अराउंड 6 मंथ्स टू 1 ईयर में स्टार्ट होती है। कई बच्चों को सेकेंड ईयर ऑफ लाइफ में ये समस्या बढ़ने लगती है, तो इससे घबराएं नहीं। मान लीजिए आपका डायग्नोसिस बन गया है 6-8 महीने पे और आपने देखा कि 1-1.5 साल में समस्या बढ़ने लगी, तो ये इसका नेचुरल कोर्स है। ये कुछ एपिसोड्स ऐसे बढ़ जाते हैं। आप क्या कर सकते हैं वो ये है कि आप धीरे धीरे ये आइडेंटिफाई करेंगे कि कोई छोटी सी चोट लगने पर, कोई मन की बात पूरी ना होने पर, कोई इमोशनल बात होने पर बच्चे कई बार ऐसा करते हैं। तो उस चीज की वजह से बच्चे को एक्स्ट्रा पैम्पर ना करें। अगर आप ये सोचें कि हम ऐसा नहीं करेंगे या मन की बात पूरी नहीं करेंगे तो इसको फिर वो हो जाएगा, उस चीज से ना घबराएं, क्योंकि ये बच्चों के लिए एक तरीके का सेकेंडरी गेन होता है। अगर आपने उनकी बहुत जिद मानना शुरू कर दिया, बहुत पैम्पर करना शुरू कर दिया, तो ऐसी चीजें और ज्यादा होंगी। तो फर्स्ट चीज, रिलैक्स रहें। सेकेंड चीज, बच्चे की अननेसेसरी डिमांड्स को पूरी ना करें। तीसरी चीज, जब ऐसा एपिसोड हो तो उस समय सारे घर के लोग भाग के ना आए, बस एक जना बच्चे के पास रहे, बच्चे को रिकवरी पोजीशन यानी एक करवट से लिटा लें, और उस समय पे बच्चे के गले में कुछ भी टाइट अगर कॉलर है, बटन है, उसको खोल दें, और ये चीज अपने आप फिर रिकवर हो जाती है। तो इसके लिए बहुत ज्यादा घबराएं नहीं। और किसी किसी बच्चे में आपके डॉक्टर्स आपको आयरन सप्लीमेंटेशन स्टार्ट करेंगे, उसका भी बेनिफिट देखा गया है। बहुत ज्यादा ये एपिसोड्स होते हैं, इसके लिए फिर कुछ दवाइयां हैं जो कि बाद में स्टार्ट की जाती हैं, जिसके लिए आप चाइल्ड न्यूरोलॉजिस्ट या फिर पीडियाट्रिक डॉक्टर्स से संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर जूही। और जो करीब कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जब वो बड़े हो जाते हैं, तो कुछ बच्चे एक ही तरफ स्टेयरिंग लुक कर लेते हैं, एक ही तरफ देखते रहते हैं, या कुछ छोटे बच्चे ऊपर की तरफ देखने लगते हैं। तो क्या ये दौरे हैं या कुछ और है? तो अगर बच्चा ऊपर की तरफ देख रहा है तो ये चीज दौरा भी हो सकती है। और एक चीज होती है बिनाइन टोनिक अपगेज ऑफ इन्फेंसी, मतलब एक सीजर मिमिक होता है, मतलब वो दौरा नहीं होता और बच्चे ऐसा कर रहे होते हैं। अगेन मैं कहूंगी, अगर आपके बच्चे को ऐसी कोई समस्या आपको लगती है, एक होम बेस्ड वीडियो बनाएं। उस वीडियो के दौरान बच्चे को बात करके, छूकर या ध्यान डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करें, और उस वीडियो के साथ आप पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट या बच्चों के डॉक्टर के पास जाएं। और बहुत केसेस में वो चीज़ दौरा नहीं होती, बच्चा डिस्ट्रैक्ट हो जा रहा है, वो चीज़ डिस्ट्रैक्शन से खत्म हो जा रही है, उसके ये पॉइंट करता है कि दौरा नहीं है। और अगर ऐसा कुछ नहीं है, ये चीज़ लंबी चलती है, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता है, उसके बाद बच्चा सुस्त होता है, डल होता है, लेथार्जिक होता है, ऐसी कोई चीज़ें हैं, तो फिर दौरे की दिशा में हम सोच सकते हैं। Right. तो आपने बताया कि जो बच्चे इस तरह से, अगर दौरे जो हैं वो रिप्रोड्यूसिबल नहीं है, और दौरे डाइवर्ट करने पे अगर सच में सीजर्स हैं तो वो चेंज नहीं होंगे, और अदर एक्टिविटीज हैं वो चेंज हो जाएंगी। जैसे बहुत बार बच्चे आते हैं जो पेरेंट्स सोचते हैं वो दौरा कर रहे हैं, और उन बच्चों से कहो कि आप इसे करके बताओ बेटा कैसे होता है, और वो बच्चे अगर करके दिखा देते हैं तो फिर वो दौरे नहीं है। बिकॉज दौरे एक इनवॉलेंट्री मूवमेंट है जो आप चाह के भी प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। और डॉक्टर जूही, कुछ बच्चे रात में डर जाते हैं, डर के उठ जाते हैं, कांपने लगते हैं। तो ऐसे बच्चों को, जैसे हमारी भाषा में नाइट टेरर कहते हैं, उसके लिए क्या आप पेरेंट्स को बताना चाहेंगे? राइट। तो जैसा कि बड़े लोगों को कभी कभी हम उठ के बोलते हैं कि आज हमने एक बुरा सपना देखा, तो जैसे ये जो बुरा सपने वाली चीज है, ये बच्चों में भी होती है। मोटे मोटे दो प्रकार होते हैं, नाइट मेयर और नाइट टेरर। ये डिपेंड करता है कि स्लीप की कौन सी स्टेज में बच्चे को ऐसा हो रहा है।
बट मोटी मोटी समझने की बात ये है कि अगर आपके बच्चे को बच्चा आपका बुरा सपना देख के उठा या डर गया या जैसे सर ने बताया शिवर करने लगा, कांपने लगा, अगर ऐसी कोई भी चीज होती है तो वो नाइट टेरर, नाइटमेयर या फिर एक तरीके की एपिलेप्सी होती है, नॉक्टर्नल फ्रंटल लोब एपिलेप्सी। ये तीनों ही पॉसिबिलिटीज होती हैं। इनका डायग्नोसिस ज्यादातर केसेस में क्लिनिकल होता है। तो ऐसे में हम हिस्ट्री पूछते हैं। तो फर्स्ट चीज है, अगर बच्चा उस सपने को पूरा याद कर पाए, सुना पाए, पूरी बात बता पाए कि हाँ मैं डर के उठ गया था, तब मम्मी पानी लाई थी, अगर उसकी मेमोरी में ये सब चीजें साफ हैं तो ये नाइटमेयर है, दौरा नहीं है। दौरे की स्थिति में जो इवेंट होगा वो बच्चे को याद नहीं। सेकेंड चीज, अगर बच्चा बहुत ज्यादा मोटर मूवमेंट्स कर रहा है, मतलब बहुत ज्यादा हिल रहा है, बहुत शिवर कर रहा है जैसा सर ने बोला, काफी वॉयलेंट हो रहा है, उस केस में दोनों पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। उस केस में हम ये देख सकते हैं कि क्या सारे मूवमेंट्स एक जैसे हैं, आर दे स्टीरियोटाइप, हर बार सेम तरीके का मूवमेंट हो रहा है। अगर ऐसा है तो वो सीजर की तरफ पॉइंट करता है। अगर हर बार अलग अलग होता है, कभी कम कभी ज्यादा, कभी इतना मूवमेंट नहीं होता, तो वो नाइट टेरर, नाइटमेयर की तरफ पॉइंट करता है। एंड अगेन होम बेस्ड वीडियोस विल बी ऑफ ग्रेट हेल्प। और जब ये चीज क्लियर नहीं होती है कि क्या है, तो इस केस में हम ईईजी की मदद ले सकते हैं। राइट। एक बच्चों में देखा गया ग्रेटिफाइंग बिहेवियर जो हम कहते हैं, बच्चे कुछ अपने एक स्टीरियोटाइप मूवमेंट करते हैं, जैसे अपनी थाई आपस में रगड़ते हैं या बिस्तर के ऊपर हिलते हैं। तो ऐसे इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, व्हाट शुड वी डू फॉर इट? ओके, तो जैसे हमने इससे पहले वाले एग्जाम्पल में देखा, इसी प्रकार जैसे अडल्ट्स में, बड़ों में मैस्टरबेशन होता है, उसी तरीके से बच्चों में भी ऐसी एक चीज होती है जिसको बोलते हैं, सर ने कहा, ग्रेटिफाइंग डिसऑर्डर। तो ऐसे में आपको ये महसूस होगा कि या तो बच्चा अपने दोनों थाइस को क्रॉस करके रगड़ रहा है या बेड पे उल्टा होके रगड़ रहा है आपको। और बच्चा ऐसा जब करता है और अगर आप डिस्ट्रैक्ट करेंगे तो वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। अगर आप बोलेंगे कि बेटा क्या कर रहे हो, उठ जाओ, तो बच्चा उठ जाएगा। तो आप समझने की बात ये है कि ज्यादातर दौरों में अगर आप डिस्ट्रैक्ट करेंगे तो बच्चा डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा, अपनी एक्टिविटी बंद नहीं करेगा। तो अगेन ऐसी कोई चीज होती है तो आप वीडियो बना के दिखा सकते हैं, और ये चीजें भी टाइम के साथ साथ चली जाती हैं। राइट। अच्छा, कुछ बच्चे अपनी तरह तरह के मूवमेंट्स करते हैं, कंधे उचकाते हैं या गर्दन बार बार झटका देते हैं, तो इस प्रॉब्लम को क्या कहेंगे? क्या ये भी दौरे होते हैं? ओके, तो जैसा सर ने करके दिखाया कि कुछ बच्चे कंधे को इस तरीके से करना या गले से आवाज निकालना अक्सर ये आवाज निकालना पूरे दिन में एक ही तरीके की बार बार, तो इनको टिक्स कहते हैं। तो ये भी दौरा नहीं होती हैं, ये एक अलग चीज होती है, जो कि दौरे की तरह लग सकती है, लेकिन ये एक अलग डिसऑर्डर है जिसको टिक्स बोलते हैं। और इनका इलाज पूरी तरह संभव है। इनके इलाज में मेन चीज होती है बिहेवियरल थेरेपी, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, सीबिट, एंड कुछ दवाइयाँ होती हैं। तो अगर आपका बच्चा ऐसा कर रहा है तो इस चीज को मैं कहूंगी कि इग्नोर ना करें कि हाँ ये तो इसकी हैबिट है, ये तो और बच्चे भी करते हैं। इस चीज को डेफिनेटली आपको दिखाना चाहिए, और ये दौरा नहीं होता। ओके। क्या बच्चों में ये सब कुछ इवेंट, इस टाइप के इवेंट कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से या फंक्शनल इवेंट की वजह से भी हो सकते हैं? यस सर, एक्चुअली जब से ये चीज़ें साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स की वजह से होती हैं, और जब से हमने इस पैंडेमिक को फेस किया है, लॉकडाउन हुआ है, बच्चों के स्कूल्स बंद हुए हैं, स्क्रीन टाइम बढ़ा है, फ्रेंड से मिलना बंद हो गया है, तब ये चीज़ें और बढ़ गई हैं। तो समझने की बात यह है कि बहुत बार बच्चों में ऐसे इवेंट्स एक्चुअली अंदर बैठी किसी स्ट्रेस का मैनिफेस्टेशन होते हैं। बहुत बार ये वॉलंटरी नहीं होते, स्ट्रेस का मैनिफेस्टेशन होते हुए भी वॉलंटरी नहीं होते, मतलब बच्चा जान के ऐसा नहीं कर रहा होता, बट अंदर इतनी बातें चल रही होती हैं कि वो इस तरीके से बाहर निकलती हैं। और कई बार बहुत सारे सेकेंडरी गेन्स होते हैं,
कई चीज़ों को अवॉइड करने के लिए, स्कूल खुलने वाले हैं उनको अवॉइड करने के लिए, कुछ एग्जाम्स, कुछ सोशल स्ट्रेसर्स, इनके चलते बच्चा ऐसा कर रहा होता है। और एज अ चाइल्ड न्यूरोलॉजिस्ट मैं कहूँगी कि दौरों को ट्रीट करना फिर भी आसान है, हम दवाई दे सकते हैं, बड़े सारे ऑप्शंस होते हैं, बट ऐसी चीज़ों को ट्रीट करना थोड़ा मुश्किल होता है। और इसमें सबसे बड़ी चीज़ जो हमें चाहिए वो ये है आप लोगों का, यानी पेरेंट्स का अंडरस्टैंडिंग, पेरेंट्स का कोऑपरेशन, क्योंकि इसमें थेरेपीज में समझने में बहुत समय लगता है, और जिसके लिए ज़रूरी है कि पेरेंट ये ना करे कि जैसे आपको डॉक्टर ने बता दिया कि ये लग रहा है कि शायद साइकोलॉजिकल है, शायद स्ट्रेस के कारण है, तो हम सोचे कि ये डॉक्टर तो बेकार है, इनकी समझ में नहीं आया और हम अगले डॉक्टर के पास जाएं। हमें कुछ समय लगेगा, डॉक्टर को भी और थेरेपिस्ट को भी और पेरेंट्स को भी, तो हमें कुछ समय देना चाहिए इस चीज को समझने के लिए, और डॉक्टर के साथ साथ चल के इस चीज को सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए, बजाय कि एक से दूसरे डॉक्टर को जाने की। राइट, ये बड़ा कॉमन है। जैसे ही डॉक्टर पेरेंट्स से कहते हैं कि एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम लग रही है, कोई बात है जो ये महसूस कर गया है बच्चा, ये किसी बात को लेके परेशान है, वो इमीडिएटली डॉक्टर से उनका ट्रस्ट खत्म हो जाता है। कहते हैं ये बच्चा ऐसा है ही नहीं, तो बहुत कहना मानने वाला बच्चा है, पढ़ने में बहुत अच्छा है। और जबकि इस समय लॉकडाउन के बाद ये प्रॉब्लम, अब जब से दोबारा स्कूल खुलने लगे, ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और आए दिन हम पे ऐसे बच्चे आते हैं जिनके सिर में दर्द हो रहा है, या वो तेज तेज सांस लेने लगते हैं, या दौरे जैसी हरकतें करने लगते हैं। तो पेरेंट्स पे बहुत ज़रूरी है समझना कि बच्चों को स्कूल जाने की आदत खत्म हो गई है और वो वहाँ बैठ के पढ़ने में बहुत असहज पा रहे हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा आपको भी समझना होगा और डॉक्टर्स के साथ कोऑपरेट करना होगा। डॉक्टर जी, इसके अलावा कोई और आप सीजर मिमिक, जैसे माइग्रेन के अंदर कई बार आधा हिस्सा चलना बंद हो जाता है, या इस टाइप की कोई और बीमारी बताना चाहेंगे आप? यस सर। तो जैसा कि सर ने कहा कि माइग्रेन, तो माइग्रेन जैसा हम जानते हैं, हम आम भाषा में इसको आधा सीसी का दर्द कहते हैं, आधे सर का दर्द कहते हैं, और बड़ों में काफ़ी कॉमनली ये बीमारी डायग्नोस की जाती होती है। तो ये बीमारी बच्चों में भी काफ़ी कॉमन है, बच्चों में भी काफ़ी कॉमन हेडेक का कॉज माइग्रेन होता है। और कुछ चीज़ें होती हैं जिनको बोलते हैं माइग्रेन वेरिएंट्स, मतलब माइग्रेन की समस्या जो कि अलग अलग रूपों में हमें दिखाई दे, जिसमें से एक सर ने मेंशन की जिसको बोलते हैं हेमिप्लेजिक माइग्रेन, मतलब सिरदर्द के साथ शरीर का आधा हिस्सा चलना बंद हो जाना, हाथ या पैर चलना बंद हो जाना, उसमें नंबनेस या चींटी चलने जैसा, सुई लगने जैसा सेंसेशन आना। तो अगर आपके बच्चे को ऐसे एपिसोड्स हो रहे हैं जिसमें कुछ सेकंड्स या मिनट्स के लिए आधा हिस्सा चलना बंद हो जाता है और फिर वो ठीक भी हो जाता है, और उनके साथ सिरदर्द भी होता है या कई एपिसोड्स में सिरदर्द नहीं भी होता है, तो दैट मीन्स ये भी एक माइग्रेन वेरिएंट हो सकता है, और इसके लिए हमें दिखाना चाहिए। दूसरा एक कॉमन माइग्रेन वेरिएंट है बिनाइन पोजिशनल वर्टाइगो, पीपीवी। इसमें बच्चों को कुछ बच्चों को चक्कर जैसा महसूस होता है, और चक्कर में बहुत बार बच्चे ये नहीं कहते आके कि हमें गोल गोल घूमता दिख रहा है, कभी कभी वो कहेंगे कि हमें चीजें अपनी ओर आती दिख रही हैं। और जो बहुत छोटे बच्चे होंगे वो तो इतना भी नहीं बताएंगे, उनके पेरेंट्स कहेंगे कि बच्चा एकदम से डरा हुआ लगता है, हमसे आके चिपक जाता है, उस समय चेहरे पे कुछ डर होता है और फिर ठीक हो जाता है। तो अगर आपके बच्चे को भी ऐसे एपिसोड्स हो रहे हैं कि बीच बीच में हल्का सा चक्कर सा आता है और फिर ठीक हो जाता है, या कुछ देर डरा हुआ लगता है, आपसे आके चिपक जाता है फिर ठीक हो जाता है, तो ये भी एक प्रकार का माइग्रेन वेरिएंट हो सकता है जो कि दवाइयों के द्वारा ट्रीटेबल है। इसके लिए हमें दिखाना चाहिए। एक बिनाइन पोजिशनल वर्टाइगो बहुत कॉमन है, जैसा कि अभी आपने माइग्रेन के साथ बताया। और उसमें बहुत बच्चे जो बड़े होते हैं एकदम कंप्लेन करते हैं कि मुझे घूम रहा है, सब कुछ घूम रहा है। तो पेरेंट्स उसे भी कई बार, क्योंकि बच्चों में बिनाइन पोजिशनल वर्टाइगो की अवेयरनेस कुछ ज़्यादा नहीं है, तो कई बार वो बच्चे को दौरे की तरफ सोचने लगते हैं। तो उसका भी ट्रीटमेंट मौजूद है, और ये माइग्रेन की तरह ही मिलती जुलती बीमारी है, जिसको 2-3 दिन की दवाई से ही ठीक करा जा सकता है।
तो बच्चों के बारे में आप बिल्कुल एकदम से डिसीजन ना लीजिए। ये हमारा आज की जो डिस्कशन है उसका मैसेज है। डॉक्टर जूही, कुछ बच्चों के लिए जो लॉकडाउन हुआ है उससे साइकोलॉजिकल इवेंट और या फंक्शनल इवेंट्स बढ़ गए हैं। इवन आज एक लड़की ने बहुत मेरी क्लिनिक पे आई और 3 दिन से स्कूल जा रही थी। उसने बहुत चीखना चिल्लाना शुरू कर रखा था। कभी कह रही थी मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, और मैंने उसे बहुत काम करने की कोशिश करी। उसके बाद बोली मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। और उसकी इवेंट ये थी कि स्कूल गई है वो 2 दिन, और स्कूल में सिर दर्द हुआ, नेक्स्ट डे फिर सिर दर्द हुआ, और 3 दिन से वो सोई नहीं थी। तो आप कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन सजेस्ट करना चाहेंगी बच्चों को, खासकर इस पेंडेमिक के बाद, जो उनके लिए हेल्पफुल रहे और नए इस तरह के नए बच्चे ना शुरू हो पाए ऐसी कंप्लेंट के साथ? राइट। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है स्क्रीन टाइम। अब जबकि स्कूल खुलने लगे हैं तो स्क्रीन टाइम कम होना चाहिए। एजुकेशनल एक्टिविटी के अलावा मिनिमम स्क्रीन टाइम व्हाट्सएप यूट्यूब कम से कम होना चाहिए। सेकंड पॉइंट है नींद। बच्चों में 7 से 9 घंटे की नींद रिकमेंडेड है। बड़े बच्चों में ये मैं बता रही हूँ, छोटे बच्चों में और ज़्यादा नींद रिकमेंडेड है। तो बच्चों में नींद और नींद का समय एक पर्टिकुलर टाइम के आसपास ही सोना चाहिए, पर्टिकुलर टाइम के आसपास ही जगना चाहिए। और वीकेंड पे ये स्लीप ना तो बहुत बढ़नी चाहिए और ना घटनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि संडे को दिन में सो गए, फिर संडे की रात देर रात तक जगे और मंडे मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग उठ गए स्कूल जाने के लिए। तो नींद बहुत इंपॉर्टेंट है और नींद की टाइमिंग इंपॉर्टेंट है। तीसरी चीज जो मैं कहूँगी वो है 1.5 साल से बच्चे स्कूल नहीं गए हैं और अब स्कूल जाना उनके लिए एक नई चीज है। कई बच्चों के लिए बिल्कुल नया एक्सपीरियंस है फिर से। तो इसके साथ आपको थोड़ा सा, अगर आपको लग रहा है आपको स्ट्रेस वगैरह हो रहा है, तो कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस, थोड़ा बहुत मेडिटेशन ये किया जा सकता है। फोर्थ है खान पान का ध्यान। जंक फूड बहुत कम होना चाहिए, 1 और 2 वीक, बस इतना ही। बाकी घर का नॉर्मल खाना खाना चाहिए। एंड फिफ्थ आई वुड से, विच इज नॉट स्ट्रिक्टली अ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, बट जो मैं देख रही हूँ कि पैंडेमिक के डर के कारण बच्चों का आपस में खेलना बहुत कम हो गया है। तो एटलीस्ट घर से एक बार, घर दिन में एक बार बच्चे को घर से बाहर निकालें और दूसरों से घुलने मिलने का मौका दें। राइट। थैंक यू डॉक्टर जूही एंड दीप्तमान। कोई क्वेश्चन है चैट बॉक्स में तो आप प्लीज मैम से पूछ लीजिए। Sure. Thank you, Dr. Juhi, for your easy explanation of many questions which was put up by Dr. Anuj sir. There are a few questions. There is a question from Sanya Rastogi. She is asking, मेरे बेबी को 1 साल पहले सीजर आया था, उसको हर महीना फीवर आ रहा है, like and now the baby is 3 years old. Is there any specific coordination or any specific reason behind it? अच्छा, ओके। नमस्कार सानिया जी, आप शायद ये पूछना चाह रही हैं कि क्या हर महीने बुखार आने का कोई ताल्लुक उसके सीजर से है। तो ऐसा नहीं है। अगर किसी बच्चे को दौरा आया हुआ होता है तो उसके बाद बार बार बुखार आना, इन दोनों का आपस में कोई संबंध नहीं होता है। 3 साल के बच्चे में यूजुअली 10 से 12 बार ये सर्दी जुकाम के इन्फेक्शंस वगैरह नॉर्मली भी हो सकते हैं। तो इसका और सीजर का कोई कनेक्शन नहीं। Thanks, ma'am. There are 2-3 questions, but in the similar question line. My son suffered epilepsy attack before a year. Since from it noticed that while speaking, then talking, communicating, he's not looking straight in eyes, and to whom he's talking, he looks points eyes to any other direction. What could be the reason? And there are a few more questions. Is there any possibility of problem while talking, conversation during epilepsy treatment? So the question is in and around the communication while having epilepsy. ओके। क्या ये क्वेश्चन मैं पढ़ सकती हूँ खुद? Yeah, it is there in the Q&A section. ओके, जस्ट अ मिनट।
ओके। तो जितना कि मैं समझ पा रही हूँ, आप ये पूछना चाह रहे हैं कि आपके बच्चे को दौरा आया था और अब जब आपका बच्चा बातचीत करता है, कम्युनिकेट करता है, तो वो सीधा नहीं देखता है। तो इन दोनों चीज़ों का तो मैं ये कहूँगी कि अगर आपका बच्चा सीधा नहीं देखता है, आई कांटेक्ट नहीं करता है, तो ये एक तरीके का कुछ बीमारियों की तरफ ये चीज़ संकेत करती है। तो अगर आपके बच्चे को अगर आपके बच्चे का आई कांटेक्ट पुअर है और उसके साथ साथ ही आप ये देखते हैं कि ये अपने आप में ही रहता है, सुन के भी अनसुना करता है, दूसरे बच्चों से ज्यादा घुलता मिलता नहीं है, अगर ऐसी समस्याएं भी हैं साथ ही साथ, तो इसके लिए फिर आपको चाइल्ड न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। और अगर ये सारी समस्याएं आ रही हैं तो हो सकता है कि ये कुल मिला के सारी चीजें एक डायग्नोसिस की तरफ पॉइंट करती हैं। Thanks, ma'am. And there is another question from Arfa. She's writing, my baby is having myoclonic spasm after 2 days from the birth. He is now 8 months now. He's under medication from a pediatric neurologist. What are the chances of recovery and how much time it usually takes to recover? ओके ओके आरफा जी, तो जो न्यूबॉर्न बच्चों में दौरे होते हैं, आपके बच्चे को 2 दिन के एज में दौरे आए थे, तो जो न्यूबॉर्न बच्चों के दौरे होते हैं वो मोटे मोटे 2 कैटेगरी के होते हैं। एक होते हैं बिनाइन और एक होते हैं किसी ना किसी एपिलेप्सी के कारण, एपिलेप्सी सिंड्रोम्स के कारण। तो अगर आपके बच्चे का, तो इसमें ज़रूरी है कि आप अपने डॉक्टर से ये पूछ सकती हैं कि आपके बच्चे का डायग्नोसिस क्या है। अगर आपके बच्चे का डायग्नोसिस कुछ ऐसा है जो कि एक बिनाइन कंडीशन है, मतलब कुछ बहुत ज़्यादा चिंताजनक बात नहीं है, तो इन केसेस में फिर ये पूरी तरह, मतलब काफ़ी हद तक ये चीज़ें रिकवर हो जाती हैं। दवाइयाँ बाद में जाके टेपर करके, यानी धीरे धीरे करके बाद में बंद हो जाती हैं। और दूसरी जो कैटेगरी है वो है कुछ एपिलेप्सी सिंड्रोम्स, जिनके तहत दौरे बार बार आते हैं या बच्चे का विकास ठीक नहीं होता है। इन केसेस में दवाइयाँ लंबी चलती हैं, ट्रीटमेंट लंबा चलता है। तो अगर आपके बच्चे का विकास बिल्कुल ठीक है, अब बिल्कुल दौरे नहीं है, सिर्फ दवाइयाँ चल रही हैं, तो दवाइयों को कंटिन्यू करें, अपने डॉक्टर के संपर्क में रहें और उनसे एक बार डिस्कस करें कि डायग्नोसिस क्या है। Right, ma'am. And there is one more question from Aisa. She's asking, if a newborn does his eyes upward for a second, is there any connection with seizure? ओके, तो जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था, पहले तो एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि जब बच्चा पैदा होता है तो तुरंत उसका फिक्सेशन नहीं आता। मतलब जैसे अगर हम किसी से बात करते हैं तो हम नजर टिका सकते हैं, हम चीजों पे, लोगों पे नजर टिका सकते हैं, जिसको कहते हैं फिक्सेशन। ये जो चीज होती है ये बर्थ के तुरंत बाद नहीं आती है। तो न्यूबॉर्न में शुरुआती कुछ दिनों या हफ्तों में बच्चे को फिक्सेशन ही नहीं होता है। तो अगर आप ये उम्मीद करें कि वो आपकी तरफ देखे या चीजों की तरफ देखे, तो कई बार ये नॉर्मली भी नहीं होता। तो हो सकता है कि अभी आपके बच्चे का फिक्सेशन नहीं आया है और इसीलिए बच्चा नजर ना टिकाकर उसको ऊपर कर ले रहा है। बट फिर भी अगर ये चीज बार बार हो रही है तो एक बार आपको अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए। एक बच्चों को सोते हुए बहुत झटके आते हैं, इवन बड़ों को भी आते हैं, एकदम जर्क आता है, तो वो एक बिनाइन फिनोमेना है। और अगर उठने के बाद ऐसे जर्क आ रहे हैं तो वो एक सीरियस फिनोमेना है, जिसके लिए हम ईजी कराते हैं या माइक्लोनिक एपिलेप्सी के बारे में, जुवेनाइल माइक्लोनिक एपिलेप्सी के बारे में सोचते हैं। तो ये कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है, और आप उसके लिए अपने बच्चों के डॉक्टर से मिलें, वो जरूर समझेंगे तो आपको पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट से मिलवाएंगे या दिखवाएंगे। और अगर आपकी शहर में पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट है तो आप डायरेक्ट पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट को जा सकते हैं। जैसे सर ने डिस्कस किया अबाउट ये मायोक्लोनिक जर्क्स, तो मैं कुछ स्लाइड्स दिखाना चाहूंगी इससे रिगार्डिंग। मे आई सर? या प्लीज। मेरी स्लाइड्स दिख रही हैं? Yes, ma'am. ओके, थैंक यू। तो जैसा कि हमने अभी तक डिस्कस किया था कि जो सीजर मिमिक्स हैं, यानी दौरे की जैसी होने वाली चीज़ें जो कि दौरा नहीं है, ये कई सारी होती हैं और इनको उम्र के हिसाब से बांटा गया है।
पहले साल में हम देख सकते हैं, सर ने अभी कहा बिनाइन स्लीप मायोक्लोनस यानी नींद में लगने वाले झटके। मैं इसका एक वीडियो भी आपको दिखाऊंगी। जिट्रीनेस, जैसा हमने डिस्कस किया था कि हाथ वगैरह हिलते रहते हैं। शडरिंग अटैक्स, इसका भी मैं एक वीडियो आपको दिखाऊंगी। ब्रेथ होल्डिंग स्पेल्स और सेंडाइफर हम डिस्कस कर चुके हैं। और एक अनकॉमन रेयर कंडीशन होती है हाइपर एक्टेक्सिया। चाइल्डहुड में बिनाइन पेरोक्सिस्मल वर्टाइगो यानी चक्कर आने वाली बात जो हमने डिस्कस की थी। साइक्लिकल वॉमिटिंग, जो भी एक तरीके का माइग्रेन वेरिएंट होता है। पैरासोमनियाज यानी नींद में बुरे सपने और डर के उठना, जो हमने डिस्कस किया। टैंट्रम्स, कई बार बहुत जिद में ऐसी हरकतें करना कि पेरेंट्स को लगेगा कि कहीं दौरा तो नहीं आ गया। और टिक्स, जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि गले से खंखारने या कंधे को हिलाने, हाथ पैर हिलाने, ऐसी समस्या। और वेजोवेगल सिंकपी यानी चक्कर खा के गिरना, बेहोश हो जाना, ये भी एक तरीके का सीजर मिमिक होता है। अडोलेसेंस यानी बड़े बच्चों में पैनिक अटैक्स, जैसा कि सर भी एक बता रहे थे कि बच्चा आया बड़ा डरा हुआ था, चिल्ला रहा था। नार्कोलेप्सी, कैटाप्लेक्सी, हेमीप्लेजिक माइग्रेन, जिसके बारे में हमने बात की। PNEs, पैरोक्सिस्मल नॉन एपिलेप्टिक इवेंट्स, यानी हमने जो अभी साइकोलॉजिकल फंक्शनल इवेंट्स की बात की थी। और कार्डियक सिंकपी यानी दिल की किसी बीमारी की वजह से बेहोश होकर गिरना। कुछ वीडियोस में आप लोगों को दिखाना चाहूंगी। जैसा कि हमने ग्रेटिफिकेशन डिसऑर्डर के बारे में बात की थी कि बच्चे कभी कभी अपने दोनों थाइस को आपस में रगड़ते हैं। ये एक वीडियो है जिसमें ग्रेटिफिकेशन डिसऑर्डर हम देख सकते हैं। ये एक वीडियो है जिसमें आंखें, अगर आप आंखों पे ध्यान दें तो एक तरीके से डांसिंग आईज इनको कहते हैं, आंखें हिल रही हैं। तो अगर आपका बच्चा वैसे एक स्वस्थ बच्चा है और अचानक आंखों में ये दिक्कत आनी शुरू हो गई है जिसमें आंखें तेजी से हिल रही हैं, तो इसके लिए आपको तुरंत बच्चों के न्यूरो के डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि एक तरीके का दौरा नहीं है, लेकिन ये एक तरीके की बीमारी है जिसका जल्द से जल्द इलाज होना चाहिए। ये एक वीडियो है जिसमें हम देख रहे हैं कि ये बच्चा ऐसे अजीब तरीके से हिल रहा है। इनको शडरिंग अटैक्स कहते हैं। ये भी दौरे नहीं होते हैं। इस वीडियो में ये बच्चा है, जैसा कि सर बता रहे थे कि एक उनके क्लिनिक पे लड़की आई थी जो कि स्कूल जाना रिसेंटली शुरू की। इस बच्चे के साथ भी कुछ इस तरीके के स्ट्रेसर्स थे, पढ़ाई को लेकर, एग्जाम को लेकर, प्रेशर को लेकर। तो इस बच्चे को रात में इस तरीके से ये कपकपी होती थी, और अगर बच्चे को उठाया जाए तो बच्चा उठ जाता था, आंखें बंद रहती थी, कोई बेहोशी वगैरह नहीं होती। तो इस बच्चे का बाद में जब डायग्नोसिस बना, सारा इवैल्यूएशन किया गया, तो ये साइकोलॉजिकल एपिसोड्स की तरह डायग्नोस हुआ। इस वीडियो में हम देख रहे हैं कि न्यूबॉर्न है जो कि नींद में इस तरीके से हिल रहा है। तो ये भी एक तरीके का बिनाइन कंडीशन है, यानी सीजर मिमिक है, दौरे नहीं है ये। और अंत में मैं आप लोगों को एक डोमिसिलरी केयर के बारे में बताना चाहूंगी, यानी फर्स्ट एड जो हमें दौरे के समय करना चाहिए। तो अगर आपके बच्चे को कोई भी ऐसा मूवमेंट होता है जिसको कि आप नहीं समझ पा रहे हैं कि ये क्या है, तो उस समय बच्चे को जो कुछ स्टेप्स आप कर सकते हैं वो ये हैं कि आप बच्चे को उस समय रिकवरी पोजीशन में ले लें, यानी एक करवट से लिटा लें। उस समय कुछ भी टाइट अगर बच्चे ने गर्दन में पहना हुआ था, कोई शर्ट का कॉलर, कोई धागा, कोई मफलर, तो उसको ढीला कर दें। बच्चे के मुंह में कुछ भी नहीं डालें, चम्मच नहीं डालें, पानी नहीं छिड़कें, बच्चे को दबाएं नहीं। उसके आसपास अगर कोई भी हानिकारक वस्तु थी, कोई भी ऐसा नुकीली चीज, कोई भी ऐसा टॉय था जिससे बच्चे को चोट लग सकती है, तो उसको हटा दें। मुंह से लार गिरती है तो उसको पोंछ दें। और जो लास्ट पॉइंट है वो दौरों के लिए है कि अगर दौरे हैं तो नाक में डालने वाले स्प्रे का प्रयोग करें, जिसका की डोज आपको आपके डॉक्टर बताएंगे। धन्यवाद। थैंक यू डॉक्टर जूही। Hello. Yeah, thank you, Dr. Jui and Dr. Anu sir. There is no more question from the attendees as of now. I believe you have covered quite a lot of
answer to their queries as well. And it was indeed a pleasure having you today and passing on the information to all the attendees. Dr. Anuj sir, any other message to the attendees today? फर्स्ट ऑफ ऑल आप ईईजी के बेसिस पे डायग्नोसिस ना बनाएं, आप अपने बच्चों के डॉक्टर को दिखाएं. कई बार सिर्फ सिंपल कैल्शियम डेफिशिएंसी, क्योंकि हमारे यहाँ काऊ मिल्क पीने का बहुत रिवाज है और उनमें कैल्शियम फॉस्फोरस का जो रेशियो है वो बहुत डिस्टर्ब होता है और अक्सर उनको हाइपोकैल्सिमिक सीजर बच्चों को हो जाते हैं. तो उसमें कोई लॉन्ग लास्टिंग ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं होती. 3 से 4-5 दिन में वो कैल्शियम की कमी पूरी हो जाती है, बाद में विटामिन डी दिया जाता है और बच्चे ठीक हो जाते हैं. तो ऐसी तमाम कंडीशन है, आप अपने बच्चे के डॉक्टर को मिलें और या बच्चों के न्यूरोलॉजिस्ट को मिलें और आपको उस बात का सही जवाब मिलेगा. एंड मोस्टली चांसेस ये हैं कि बच्चे को दौरे की दवाई नहीं दी जाएगी. सिर्फ बहुत कम कंडीशन ऐसी हैं जब दौरे की दवाई देनी पड़ती है, और जब आप प्रॉपर डॉक्टर के पास जाते हैं, राइट डॉक्टर चूज करते हैं, तो आपको राइट ट्रीटमेंट मिलता है. ये बहुत जरूरी है, आप बच्चों के डॉक्टर को अपने बच्चों को दिखाएं. थैंक यू फॉर द पेशेंट लिसनिंग. थैंक यू डॉक्टर जूही. थैंक यू दीपमान जी. Thank you, sir. Very much, sir. Thank you. Thank you so much, and thank you all the attendees. Have a wonderful night. Thank you, Doctor. Thank you.